Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by Fullen Academy. इस वीडियो में हम मार्केट का स्ट्रक्चर को इन डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। मार्केट का इस वीक में क्या स्ट्रक्चर रहा हुआ था, चार्टिकली क्या हमें चार्ट इंडिकेट करता है एंड आने वाली वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और कौन सा रुझान रह सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ में सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। In a previous week, market was down by 5.5%, and in this week, Nifty was up by near to the 2.5%. So whatever the previous week pain was, that half of the pain has recovered in this week. Now looking at a technical perspective and specifically from the candlesticks perspective, so at each and every top we have seen some sorts of bearish reversal sign like a dark cloud core pattern, bearish engulfing pattern, evening star pattern, and followed by that on the bottoms we have seen a bullish reversal sign pattern, so hammer pattern, bullish engulfing pattern. So after this bullish reversal sign we have seen the emergence of a corrective upside momentum. So in this particular week also index has formed the bullish reversal candle, which is called as in a bullish Hermy pattern, as the green color candle is within the red color candle. So this is a bullish development is that, and this particular candle's location is also very important, because in the last week we have discussed that it is happening at a previous low level point, and secondly if we take the moving average as well, so that is what positional moving average that we normally choose, and the prices are at a support level of that actually. So moving average support level is that, price action reversal level is that after the decent fall prices has formed the bullish Hermy pattern, which is what in positive development, and in the previous instances also we have witnessed that after the bullish reversal formation we have seen the corrective upside bounces. So in this particular market structure we can say that the overall structure remains negative, but corrective upside momentum cannot be ruled out. Looking at a microscopic perspective, okay, what are the important levels and how the view is for the next week, we will discuss in the next point. There is one repetitive structure that we have witnessed in this current fall, which has begun from April 2022. So in this fall what we have witnessed is that there was a kind of a fall initially that we have witnessed over here, followed by a gap down, quite heavy gap down, and then afterwards prices has consolidated for a long time. Again there was a fall, there was a gap down opening, and again there was a quite of consolidation patch. Now this time again there was a huge declining momentum that has happened, followed by the heavy gap down opening, and we are seeing that the prices are consolidating right now. So there is a certain kind of repetitiveness that we have seen, and again the market doesn't fall in a one way. There are a price wise correction and there are a time wise correction we are in. So as of now there is a time wise correction is going on, but taking the cue from the weekly chart, that index has formed the bullish Hermy pattern at a very good potential support level, so that is indicating the emergence of a corrective upside momentum. And looking at a daily chart also, it indicates that whenever the upside momentum followed that has happened, so at least it has attempted to fill that gap. So let's say here there was an upside momentum happened and prices has filled that gap, and there was a time wise correction and prices has come down. This time also the prices has come down very heavily, it has consolidated, but this particular gap eventually it has filled and again the prices has come down. So as of now the prices are hovering around the 15,700 level, but on the high side if we just see the upper end of the range, so we can understand that it is near about coming to the 16,000 to 16,200 level. So there can be a corrective upside momentum, but this corrective upside momentum has a potential of the improvement up to the 16,100 to 16,000 level to the 16,200 level. So let's see how coming week. On the basis of relative strength analysis, हम सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम एक साल से और इन रिसेंट डिक्लाइनिंग मोमेंटम का कंपैरिजन करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि 5 से 10 महीने में कौन से सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया हुआ है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट का स्विंग आया हुआ है तो उसके हिसाब से हमने सेक्टर स्पेसिफिक इक्विवेलेंट वेटेज के बेसिस पे हमने रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं. तो लेट्स से कि जब भी मार्केट का पहला अपसाइड मोमेंटम था जो कि 15,700 जो 2021 में जुलाई मंथ में बना हुआ था, और उसकी अपसाइड मोमेंटम कुछ अक्टूबर महीने तक हमें देखने मिली थी 18,400 तक की, जहां पे 78% अपसाइड मोमेंटम था. तो निफ्टी ने 78% अपसाइड मोमेंटम दिया हुआ था, जबकि पावर सेक्टर्स ने उस टाइम के दौरान 33% अपसाइड मोमेंटम दिया हुआ था. तो वैसे ही सारे सेक्टर का हमने कैलकुलेट किया हुआ है. सो जैसे ही मार्केट के जिस हिसाब से स्विंग बन गए कि दिस वाज एन अपसाइड स्विंग, दिस वाज अ डाउनसाइड स्विंग, तो इस स्विंग के हिसाब से ऑन एन एवरेज बेसिस पिछले 1 साल का
पावर सेक्टर का रिटर्न कुछ 5% का आता है. सो दैट इज़ व्हाट इन हाईएस्ट परफॉर्मेंस दैट वी आर सीइंग इन अ वन टाइम फ्रेम होराइजन. लेकिन ये जो करंट फॉल है जहाँ पे मार्केट की डिक्लाइनिंग मोमेंटम 13% से हमें देखने मिली हुई है, वहाँ पे पावर सेक्टर 9% की डिक्लाइनिंग मोमेंटम में आया हुआ है. मीडिया स्टॉक्स अर्लियर टाइम काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था. ओवरऑल 4% की उसने रिटर्न दी हुई है, जबकि मार्केट का सिर्फ 21% का अपसाइड मोमेंटम रहा हुआ है. लेकिन रिसेंट डिक्लाइनिंग मोमेंटम में उसका मोमेंटम 25% हमें रहा हुआ है. तो इन सारी चीज़ को डेटा को प्रॉपरली एनालिसिस करके अगर हमें उसमें कुछ समरी देखनी होती है तो ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छा है. और इस रिसेंट डिक्लाइनिंग मोमेंटम के बाद में इन ऑटो सेक्टर ने कुछ 1% से आउट परफॉर्म किया हुआ है. मार्केट 13% से डाउन है और ऑटो सेक्टर 1% का पॉजिटिव होना, इट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीम आउट परफॉर्मेंस वी कैन से. तो फिलहाल ऑटो सेक्टर काफ़ी मोमेंटम में है. अब जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे और सपोर्ट लेवल से बाउंस करा है, तभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो भी काफ़ी हैवीली बेटन डाउन सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी हमें कुछ एक डेड कैट बाउंस या फिर शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने मिलती है. तो वैसे में हम देखे जाएँ तो आईटी सेक्टर जिसका परफॉर्मेंस पहले काफ़ी अच्छा रहा होता, लेकिन रिसेंट डिक्लाइनिंग मोमेंटम में काफ़ी स्टॉक ने बेटन डाउन हमें देखने मिले हुए हैं 25% के अराउंड से. लेकिन ये सारे डिक्लाइनिंग मोमेंटम होने के बावजूद प्राइजेस अपने एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है. स्ट्रक्चर वाइज अभी भी नेगेटिव है, लेकिन डेड कैट बाउंस हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. तो आईटी सेक्टर में एक टैक्टिक व्यू हम बना सकते हैं ऑन द अपसाइड मोमेंटम. एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर है या फिर एफएमसीजी सेक्टर है, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक पॉजिटिव स्ट्रक्चर उनका चार्ट का रहा हुआ है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू बना रहेगा. तो इन कमिंग वीक ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी स्टॉक्स एंड आईटी स्टॉक्स पे ऑन अ पॉजिटिव साइड हम देख सकते हैं. हमने सेक्टर एनालिसिस में देखा हुआ है कि ऑटो सेक्टर ने काफ़ी अच्छी मोमेंटम दी हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ नियर अबाउट 1 ईयर में भी. और रिसेंट अपसाइड मोमेंटम भी जो हमने देखने मिली हुई है, जहाँ पे मार्केट 13 to 14% माइनस में थी और वहाँ पे ऑटो सेक्टर ने 1% पॉजिटिवली परफॉर्म किया हुआ है. सो दैट इज़ इन वेरी ह्यूज परफॉर्मेंस. तो हम ऑटो सेक्टर से एक स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और स्टॉक है एंड्योरेंस. सो इस एंड्योरेंस स्टॉक्स पर हमें एनालिसिस करते हैं. टेक्निकली हमें ये समझ में आता है कि स्टॉक की एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिली थी, फॉलोड बाय द स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट लेवल. इस रिट्रेसमेंट लेवल को हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल पे रिट्रेस कर चुका है और वहाँ पे बेस बना के प्राइस ने ऊपर की साइड का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है. यही चार्ट को हम लाइन चार्ट पे देखते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड दैट कि आपका 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल तो है ही, लेकिन इसके साथ में यू कैन सी द रूल रिवर्सल लेवल एज वेल. जो पहले के रेजिस्टेंस लेवल हुआ करते थे वो अभी सपोर्ट लेवल लेके यहाँ से हमें बाउंस देखने मिला हुआ है. सेम स्टॉक को अगर हम लो टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सो वी कैन सी दैट के स्टॉक का एक बेस फॉर्म हो के इट इज़ ट्राइंग टू पिक अप इट्स मोमेंटम ऑन द हाई साइड. सो लेट्स से कि देयर वाज एन इनिशियल टाइम एक सपोर्ट लेवल के यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था. स्ट्रॉन्ग बेस बन के प्राइस ने ऊपर की साइड का ब्रेकआउट दिया हुआ है. ऑन द हाई साइड अगेन द प्राइजेस हैज़ गॉट इनटू द कंसोलिडेशन रेंज और फिर से प्राइजेस का यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है. सो ये स्टॉक की एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन बनती है. इस पर्टिकुलर व्यू को हम ट्रेड पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, लिटिल बिट फ्रॉम द स्विंग पर्सपेक्टिव. तो यहाँ पे ट्रेड का एक्यूमुलेशन रेंज आपका करंट लेवल 1347 से लेके जो नीचे का इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल है, रोल रिवर्सल लेवल है 1275 का, तो यहाँ पे आपका एक सपोर्ट लेवल बनता है. सो ये एक एक्यूमुलेशन रेंज बनती है. नीचे में ये जो इसके बेस है यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस एंड ऑन द हाई साइड जो यहाँ पे गैप अप मिला हुआ है और वहाँ पे काफ़ी सारे रिवर्सल्स पॉइंट देखने मिले हुए, दैट इज़ व्हाट अ रेजिस्टेंस पॉइंट. रिस्क रिवार्ड रेशियो हम यहाँ पे मैच करने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स से कि रिस्क रिवार्ड रेशियो का मैं यहाँ पे कैलकुलेशन यूज़ करता हूँ. ये पूरी रेंज की मैं मिडिल पॉइंट एज अ एंट्री पॉइंट कंसिडर करता हूँ. इसके नीचे का जो ये पॉइंट है दैट इज़ व्हाट माय स्टॉप लॉस एंड ऊपर का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है दैट इज़ व्हाट माय टारगेट लेवल. तो मीन्स 1350 से लेके 1280 का अपना एक्यूमुलेशन रेंज, 1215 के अराउंड का अपना स्टॉप लॉस एंड ऑन द हाई साइड 1530 के अराउंड का एक टारगेट पोटेंशियल सेट होता है. तो रिस्क रिवार्ड के रेशियो के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 का रिस्क, मोर देन 2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है. तो ये स्टॉक को हम आने वाले टाइम के लिए ट्रैक कर सकते हैं. इस वीडियो में जो भी हमने बात की हुई है दैट इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली. थैंक यू सो मच.